everyone. Now in our polity series, we will discuss the next important topic, that is citizenship. Let's start. How is citizenship defined? Citizenship signifies the relationship between individual and state. Like any other modern state, India has two kind of people, citizens and aliens. Aliens are further two types, friendly alien and enemy alien. एनिमी एलियंस वो होंगे, उस कंट्री के सिटीजन होंगे जिनके साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, जैसे पाकिस्तान है, चाइना है। और जो फ्रेंडली एलियंस होते हैं वो उस कंट्री के सिटीजन होते हैं जिसके साथ इंडिया के अच्छे ताल्लुकात हैं। जैसे एनिमी एलियंस को जो राइट्स हैं वो कम अवेलेबल होते हैं, जैसे आर्टिकल 22 जो है वो एनिमी एलियंस को अवेलेबल नहीं है, दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। So, citizens are the full member of the Indian state and owes allegiance to it. They enjoy all civil and political rights. Citizenship is an idea of exclusion as it excludes non-citizens. And now there are two well-known principles for the grant of citizenship. जब भी कोई state grant करती है citizenship को, उसके two principles जो है follow किए जाते हैं, jus solis and jus sanguinis. Jus solis confers citizenship on the basis of place of birth, and jus sanguinis give recognition to blood ties and through their parent or ancestor independent of where he or she is born. This jus solis and jus sanguinis is a Latin term. From the time of Motilal Nehru Committee in 1928, the Indian leadership was in favor of the enlightened concept of jus solis because the racial idea of jus sanguinis was also rejected by the Constituent Assembly as it is against the Indian ethos. So citizenship is listed in the Union list under the Constitution, so it is under the exclusive jurisdiction of Parliament. Constitution does not define the term citizen, but detail of various category of person who are entitled to citizenship are given in part 2. As we already discussed part 1 from article 1 to 4, and this is part 2 from article 5 to 11. In our Constitution, there are no permanent provision regarding or elaborate provision in this regard, but our Constitution has empowered the Parliament to make law related to the Constitution. So this citizenship provision was came into being on January 26, 1950, and these articles were enforced on November 26, 1949. Sorry, all other provisions came into being on 26 January 1950, but the provision related to the citizenship were enforced on November 26, 1949 itself, when the Constitution was adopted. So, Indian citizenship के जो मेथड है वो एक्वायर एंड लॉस वाले सिटीजनशिप वो आते हैं हमारे इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये जो है एक्ट पार्लियामेंट जो है उसके द्वारा बनाया गया है। सो नाउ वी विल डिस्कस द आर्टिकल फ्रॉम 5 to 11. Article 5, what Article 5 says, it provided for citizenship on commencement of the Constitution. जब हमारा संविधान स्टार्ट हुआ है उस टाइम पे जितने भी इंडिया के जो लोग थे सबको जो है वो सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है. All those domiciled and born in India were given citizenship. Even those who were domiciled but not born in India, but either of whose parents were born in India, were considered citizenship. Anyone who had been an ordinary resident for more than 5 years was entitled to apply for citizenship. And Article 6 states that provides the rights of citizenship of certain person who have migrated to India from Pakistan. जो लोग जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया आए थे उनको जो है सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात करता है. Since independence was preceded by partition and migration, Article 6 laid down that anyone who migrated to India before July 19, 1949 would automatically become an Indian citizen if either of his parents or grandparents were born in India. But those who entered India after this date need to register themselves. And Article 7 provided right of citizenship of certain migrant to Pakistan. ये वाला जो Article 7 है, ये जो लोग इंडिया से पाकिस्तान
इंडिया से पाकिस्तान आए, फिर दोबारा पाकिस्तान चल के फिर दोबारा इंडिया में आते हैं, उनके बारे में ये बात करता है। राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान, दोज हु हैज माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर मार्च 1947 बट सब्सिक्वेंटली रिटर्न ऑन रीसेटलमेंट परमिट were included within the citizenship net. Article 8 provide right of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside India. जो लोग बाहर रहते हैं, जैसे persons of PIA, persons of Indian origin, उनके बारे में ये बात करता है। Article 9 what says, if any person voluntarily acquired the citizenship of foreign state will no longer be a citizen of India. अगर कोई बंदा इंडियन सिटीजन है और बाहर जाके किसी और देश की जो है सिटीजनशिप एक्वायर करता है, तो उसकी जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली जो है वो खत्म हो जाती है। Article 10 it states that every person who is or is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provision of this part shall subject to provision of the, ये कहता है कि जो इंडियन सिटीजन है वो इंडियन सिटीजन रहेगा जैसे ही कोई पार्लियामेंट जिस तरह से लॉ बनाता है उसके अकॉर्डिंग। आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप एंड ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू। जो हमारा पार्लियामेंट है उसको एम्पावर करता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई प्रोविजन है नहीं इलेबोरेट, और पार्लियामेंट को एम्पावर किया है। और नाउ वी विल डिस्कस हाउ एन इंडिविजुअल कैन बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया। And basically there are 4 ways to acquire the citizenship of India. One is by birth, second by descent, third is by registration, and fourth is by naturalization. So let's see. Citizenship by birth is granted if one is born in India between January 1950 to January 1987, born between, or second provision, born between July 1987 and December 2004 and either of his parent is citizen of India. जहाँ उसका एक पेरेंट जो है वो भी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए जो इस टाइम के बीच में पैदा हुए हैं। एंड जो बंदे आफ्टर दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए और एटलीस्ट वन पेरेंट जो है उनका वो सिटीजन है एंड अदर पेरेंट इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट, उसको भी जो है सिटीजनशिप बाय बर्थ जो है वो ग्रांट की जा सकती है। सिटीजनशिप बाय डिसेंट इज ग्रांटेड इफ पर्सन इज बोर्न आउटसाइड इंडिया। अगर कोई बच्चा बाहर पैदा हुआ है लेकिन उसका फादर जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया है एंड पर्सन जो है वो जनवरी 1950 1992 के बीच में पैदा हुआ है, जहाँ दिसंबर 1992 के बाद पैदा हुआ है और उसका दोनों में से एक फादर या मदर जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया है। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड टू एनी ऑफ द पर्सन हु इज ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड स्टेड हियर फॉर मोर देन 7 years एंड और किसको दे सकते हैं? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड स्टेइंग आउटसाइड ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया। और जहाँ फिर वो मैरिड है इंडियन सिटीजन के साथ और स्टे कर रहा है इंडिया में मोर देन 7 years, उसको भी जो है रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो है सिटीजनशिप ग्रांट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन जो है, नेचुरलाइजेशन के अंदर जो है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कुछ प्रोविजंस डाले हैं जो उसको लगता है कि इस बंदों को जो है वो सिटीजनशिप ग्रांट की जा सकती है। जैसे एक प्रोविजन उसके अंदर है, बहुत सारे प्रोविजन है, जैसे एक प्रोविजन के अगर उसको लगता है कि ही इज ऑफ गुड कैरेक्टर, ही हैज एन एडुकेट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो उसको ग्रांट कर सकती है। ये जो है गवर्नमेंट की प्रीरोगेटिव के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि वो किसको जो है सिटीजनशिप देना चाहती है। जैसे जो अदनान सामी है उसको जो है वो नेचुरलाइजेशन के थ्रू जो है वो सिटीजनशिप मिली है। और जो भी बंदा रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के थ्रू इंडिया में सिटीजनशिप लेता है उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ओथ जो है वो लेनी पड़ती है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के अंदर जो है कोई भी बंदा जो है इंडियन सिटीजनशिप है वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए जो है वो खड़ा हो सकता है, लेकिन दिस इज नॉट द केस इन अमेरिका। अमेरिका में अगर कोई बंदा प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो वो बाय बर्थ ही जो है वो होना चाहिए तो ही वो कर सकता है, नेचुरलाइज्ड पर्सन जो है वो नहीं लड़ सकता। Now what are the ways of loss of Indian citizenship? These are the 3 ways of
losing your Indian citizenship. One is renunciation, second termination, and third is deprivation. Renunciation क्या है? Renunciation is voluntarily act जिसमें बंदा खुद ही renounce करता है कि I have acquired the citizenship of a country, so another country gives up his Indian citizenship. Termination take place by operation of law. When an Indian सिटीजन वॉलेंटरली एक्वायर द सिटीजनशिप इन अदर कंट्री, उसकी जो है अपने आप जो है वो टर्मिनेट हो जाती है. डेप्रीवेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई बंदा जो है उसने इंडियन सिटीजनशिप जो है ले ली है बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के थ्रू, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये लगता है कि उसने जो एक्वाजिशन करी है इंडियन सिटीजनशिप की, इट इज़ बाय फ्रॉड या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट और बीइंग डिसलॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो जो है उसकी जो है ख़त्म करी जा सकती है. नाउ इन इंडिया वी हैव द सिंगल सिटीजनशिप. As we know that India is a federal polity, it envisages dual polity. But here we have a single citizenship, not unlike other country USA and Switzerland. वहाँ पे क्या होता है, अगर कोई सिटीजन है वो इंडिया वो USA का भी सिटीजन है, जो USA के अंदर प्रोविंसेस है, स्टेट है, वहाँ का भी सिटीजन है. लेकिन दिस इज नॉट द केस ऑफ इंडिया. यहाँ पे हमारी सिंगल सिटीजनशिप वाला कंसेप्ट है, क्योंकि अगर वो वाला कंसेप्ट होएगा कि हर स्टेट जो है उसकी अलग से सिटीजनशिप है, तो स्टेट कैन फेवर इट्स सिटीजन इन मैटर ऑफ लाइक राइट टू वोट है, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन जो है वो कर सकता है उसको. इवन अभी जो हरियाणा ने अपनी अभी एक जो लॉ लेके आ रहे हैं जिसके अंदर वो 75% रिजर्वेशन जो है लोकल्स को देंगे, उसका भी बहुत जो है वो क्रिटिसिज्म हो रहा है कि इट इज़ वेरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लाइक 14 को वॉयलेट करता है, आर्टिकल 19 को 40 जो है वॉयलेट करता है. और मोर ओवर ऐसा अगर करने लग जाएंगे तो सभी स्टेट्स जो है वो करने लग जाएगी. आज ही जो है पंजाब गवर्नमेंट ने भी जो है अनाउंस किया है कि दे विल हायर द लोकल. सो इट इज अगेंस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन राइट. और एक और भी था जी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो 2019 में आया था. इसमें क्या किया था, जो 6 कम्युनिटी है 3 कंट्री से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, वहाँ की जो 6 कम्युनिटी है उसको जो है सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात करता है कि अगर वो 14 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं उनको जो है सिटीजनशिप देगा. हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी है और क्रिश्चियंस है. और इसमें जो रिक्वायरमेंट है सिटीजनशिप एक्वायर करने की 11 है, उसको घटा के जो है वो 6 ईयर ये करता है. आल्सो एग्जेम्प्टेड दिस माइग्रेंट फ्रॉम द पासपोर्ट एक्ट एंड फॉरेनर्स एक्ट आ गया. इसीलिए जो है जो असम अकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ डेट दी गई है, असम अकॉर्ड ने जो डेट दी है वो कट ऑफ वो है 25 मार्च 1971. उसके अकॉर्डिंग जो है ये कट ऑफ डेट ये वाली है. इस एक्ट के अंदर जो उन्होंने डेट दी है वो 14 दिसंबर 2014 दी है. और इस अगर ये वाला एक्ट यहाँ पे भी लागू, ऑल्दो ये एक्ट यहाँ पे लागू नहीं होता, इसीलिए जो था इसका क्रिटिसिज्म था कि बहुत सारे जो इलीगल बांग्लादेशी हिंदू माइग्रेंट्स हैं उनको जो है फिर ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप जो है वहाँ की मिल जाएगी. So I hope you understood the topic citizenship, and if there is any question you can find me at StudyGyan on the Facebook and Telegram link. And guys, don't forget to subscribe to my channel StudyGyan, and see you tomorrow with the next topic, very important topic, fundamental right. Thanks.